Good morning. Hello everyone. Today I will discuss some important terms with you, and these important terms is related to that particular table in which you can easily identify these terms. So this is the terminology that we will discuss further in this chapter. So let's discuss about that term. The first one term is valence shell. What is the valence shell? Outermost shell of an atom filled with electrons is called valence shell. Like you can see here, in this table we can say that this is the distribution of electron. So here the outermost shell is K, K, L, 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 यहाँ पे आके M हो जाती है, all contain M and then N. So that shell is known as valence shell, which is the outermost shell filled with electrons. So here the K is the valence shell, K, L, 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 and then M, M, then N, N. So जिसकी outermost shell में outermost shell जो होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, खाली शेल की बात नहीं कर रहे, खाली तो होंगी नहीं, वैलेंस शेल हम उस शेल को बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन में जिस नंबर ऑफ शेल पे इलेक्ट्रॉन होंगे आउटर मोस्ट पे. लाइक इसमें आप इसका एग्जांपल लीजिए क्लोरीन का. सो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 और थर्ड में 7. तो थर्ड वाली शेल को वैलेंस शेल बोलेंगे, इट इज M. तो इसकी वैलेंस शेल M हुई. ऐसी मैग्नीशियम की वैलेंस शेल टू इलेक्ट्रॉन है, देखिए इसमें लास्ट में, और ये भी M है. हाइड्रोजन की वैलेंस शेल K है क्योंकि एक ही शेल है. ऑक्सीजन की वैलेंस शेल बेसिकली इट इज 6 and 2. तो ये 6 आउटर मोस्ट शेल यही है, तो ये L है. तो डिफरेंट एलिमेंट की वैलेंस शेल हम इससे डिस्कस करते हैं. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, the electrons present in the outermost shell of an atom are known as valence electrons or valency electrons. Basically these take part in a chemical reaction. I want to discuss one thing. In chemistry, in your 7th class, 8th class, or in the previous class, you already know that chemicals react with each other and like reactants, and they form some different chemical like products. So in a chemical reaction, when we say that these are the reactants or these are the product, actually in that particular reaction, these atoms react with each other. So atom take part in the chemical reaction, and now I am going to discuss with you कि atom के अंदर जो electrons होते हैं, electrons को जब आप distribute कर लेते हो, तो जो वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एक्चुअल में वो केमिकल रिएक्शन में पार्ट प्ले करते हैं. देखिए इसको सीक्वेंस में ध्यान कीजिए. केमिकल्स टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, it means the atom present in that chemical take part in a chemical reaction. It means the number of outermost shells electron take part in a chemical reaction. And outermost shell हमने यहाँ डिस्कस की वैलेंस शेल. वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, those electrons are called valence electrons. देखिए फिर मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी. यहाँ देखिए लाइक सोडियम है. सोडियम contain 11 atomic number, 11 number of protons and 11 electrons. So the distribution is 2, 8, 1. 1, this is the outermost shell, M shell, this is the valence shell. और इस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1. So 1 is the valence electron. Number of electrons present in the valence shell is called valence electron. Like here 1, here 2, here 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, again 1, 2, 3, 4. So outermost shell में जो electrons हैं, valence shell में जो electrons हैं, those are called valence electrons. Before discussing about the noble gas, I will discuss this one. An atom has a tendency to become stable. हर एटम की एक टेंडेंसी होती है कि एटम को स्टेबल बनना है. एटम स्टेबल होता कब है? When its outermost shell is completely filled.
Now again you can see in this table here, second one, helium. Helium has K shell, and K shell has a maximum capacity of 2 electron and it contains 2 electron. It means K is the outermost shell of helium and it is completely filled. तो अगर कोई एटम पहले से ही अपनी आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीटली फिल्ड किए हुए है तो वो स्टेबल है. In these 20 elements, there are few elements which are stable. One is helium, it is stable. You can see here, helium is stable. Another one is neon. Neon contain 8 electron in L shell and it is the maximum limit. So this one shell is completely filled. आउटर मोस्ट शेल अगर कंप्लीटली फिल्ड है तो स्टेबल है, तो इसकी एल शेल आउटर मोस्ट शेल है और ये कंप्लीटली फिल्ड भी है, सो दिस वन इज आल्सो स्टेबल. आफ्टर दैट आर्गन. आर्गन कंटेन 18 इलेक्ट्रॉन्स एंड 2 8 8. सो हमने डिस्कस किया था ना, वैसे तो एम शेल की जो कैपेसिटी होती है वो 18 इलेक्ट्रॉन्स की है, बट आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन फिल करके भी उसको कंप्लीटली फिल ही माना जाता है. So इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है इस शेल में, so it is completely filled. So we can say this one is also stable. So out of 20 elements, 3 elements are stable. Why these are stable? Because their outermost shell is completely filled. But what about rest of the element? So every element has a tendency to become stable. And when it will be stable? It will be stable when it has outermost shell completely filled. अगर उसकी outermost shell completely filled है. Now the question is how an atom can fill its outermost shell. So outermost shell को fill करके वो stable होगा. Outermost shell कैसे fill की जा सकती है? क्योंकि either it contain less electrons, either it contain more electrons. आउटर मोस्ट शेल को फिल हम तब मानेंगे जब उसकी अगर K को छोड़ के L, M या N शेल है, अगर उसमें 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, then it is considered to be completely filled and that element becomes stable. But as you can see in this table that only 3 elements are stable, rest of the element do not contain, either it contain 1 electron, 2 electron, 3 electron, 4, 5, 6, 7, but not completely 8. Like you can see here 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, not completely 8, 1, 2. So we have to complete it. We have to complete it with 8 electrons. अब 8 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करने के लिए K शेल को आप हाइड्रोजन को छोड़ दीजिए, K शेल वाले इन दोनों एलिमेंट को छोड़ के बाकी की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि K शेल की तो कैपेसिटी 2 है. सो हाइड्रोजन कब कंप्लीटली फिल होगा? जब ये 1 इलेक्ट्रॉन इसमें और एंटर करा देगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसको और चाहिए. तो हाइड्रोजन के केस में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, बट रेस्ट ऑफ द एलिमेंट शुड कंटेन 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल. जब भी हम फिल करने की बात करते हैं तो हम कभी भी अपनी चीज दूसरे को देने की बात नहीं, उससे लेने की बात कर रहे हैं. लाइक इन दिस वन 1 इलेक्ट्रॉन इज देयर, तो अगर ये कंप्लीटली फिल करे तो 7 इलेक्ट्रॉन इसे और चाहिए, इसको 6 चाहिए. इट नीड 5, देन 4, देन 3, देन 2, देन 1. अब ऐसे तो सारे के सारे एटम्स इलेक्ट्रॉन वो बाहर से लेकर स्टेबल होना चाहेंगे, बट इट्स नॉट द रूल. तो क्या रूल है स्टेबल होने का? एक्चुअल में an atom has to gain or lost, ले भी सकता है और दे भी सकता है इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इट्स वैलेंस शेल. तो एटम को आउटर मोस्ट शेल को फिल करने के लिए either it has to gain electron or it has to lose electron. But who will decide that which one element will gain electron and which one element will lose electron? Don't worry, we have a perfect solution for that. If valence electrons are less than 4, अगर valence electron less than 4 हैं, means आप इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए
और आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं अगर वो 4 से कम हैं तो एटम उन इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देगा, अपने पास से निकाल देगा। तो ऑब्वियस बात है जब वो अपने आप पास से वो एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो उससे पहले वाली जो शेल है वो तो कंप्लीटली फिल थी, तो इसका मतलब वो भी स्टेबल हो जाएगा। और ऐसे एलिमेंट्स को हम बोलते हैं मेटल। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 4 हैं तो 8 को कंप्लीट करने के लिए वो जितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है उतने इलेक्ट्रॉन बाहर से गेन कर लेगा, और ऐसे एलिमेंट को हम बोलते हैं नॉन मेटल। ये प्रोसेस इसलिए है क्योंकि इलेक्ट्रॉन को गेन करने और लूज करने दोनों में एनर्जी लगती है। जब भी इलेक्ट्रॉन अगर उसको बाहर से ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़े तो फिर तो बहुत एनर्जी लूज हो जाएगी, तो इतनी एनर्जी का लॉस एक एटम टॉलरेट नहीं कर सकता। तो इसलिए ये एक पर्टिकुलर टेंडेंसी है, इफ इट कंटेन लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन तो वो डोनेट करता है, इफ इट कंटेन मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन तो वो गेन करता है। अब आप सोच रहे होंगे एंड व्हाट अबाउट 4, इफ एन एलिमेंट कंटेन 4 इलेक्ट्रॉन तो वो ना तो गेन करता है ना वो लूज करता है, वो शेयर करता है। एंड दिस वन प्रोसेस यू विल डिस्कस इन योर 10th क्लास। शेयरिंग का प्रोसेस आप 10th क्लास में डिस्कस करेंगे। एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ टेबल में। इन दिस टेबल as I will discuss from the calcium. Calcium contain 2 valence electron. So as it is less than 4, तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा। अब जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ? 2 8 8। तो अब देखिए ये तो शेल कंप्लीटली फिल है, तो ये बन जाता है स्टेबल। पोटेशियम भी डोनेट करेगा क्योंकि लेस देन 4 है। क्लोरीन क्योंकि ग्रेटर देन 4 है, 7 है, तो ये 8 कंप्लीट करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन इसे बाहर से चाहिए उतने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो 8 कंप्लीट करने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 6 को 8 कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 5 को 8 कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। और 4 वाला केस मैंने आपके साथ डिस्कस किया, ये गेन और लूज नहीं करता, ये शेयर करता है। और शेयरिंग का कॉन्सेप्ट हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, 10th क्लास में आप पढ़ोगे। ये 3 इलेक्ट्रॉन है, लेस देन 4 है, तो ये 3 के 3 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देगा। और देखिए पहले वाली शेल तो पहले से ही फिल थी, तो अब जब इसने ये वाली शेल खत्म कर दी अपनी, तो दैट मीन्स इसके पास जो अब आउटर मोस्ट शेल बनी वो L हो गई और L कंप्लीटली फिल्ड है। सेम हैपेंड विद मैग्नीशियम, विद सोडियम एंड सो ऑन। अब जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं या जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप डोनेट करते हो, चाहे गेन करो चाहे डोनेट करो, सिर्फ काउंटिंग ध्यान रखनी है कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपने गेन की, मतलब एटम ने गेन की, और कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एटम विल लूज। दैट इज नोन एज वैलेंसी। दिस वन टर्म very very important term. So as I discussed with you, it lose 2 electrons so the valency is 2, it lose 1 electron so the valency is 1, it gain 1 electron so valency is 1, it gain 2 electron valency is 2। ये एक्सेप्शनल केस है, वैसे इसकी वैलेंसी 3 होती है, पर कुछ नेचर में कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जो हम चैप्टर में आगे डिस्कस करने वाले हैं, तो आप ध्यान रखिए 3 वैलेंसी। क्योंकि ये गेन भी नहीं करता, लॉस भी नहीं करता, ये शेयर करता है, तो शेयरिंग में जितने इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट शेल में होते हैं उतनी ही वैलेंसी। सो 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 ही वैलेंसी। इट डोनेट 3 इलेक्ट्रॉन सो 3 वैलेंसी, इट डोनेट 2 इलेक्ट्रॉन सो 2 वैलेंसी, इट डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन सो 1 वैलेंसी। और जिनकी आउटर मोस्ट शेल पहले से ही कंप्लीट थी उनकी 0 वैलेंसी है। देखिए यहाँ भी 0 है, फिर यहाँ भी 0 है और यहाँ भी 0 है। इसीलिए क्योंकि इनकी तो आउटर मोस्ट शेल पहले से ही कंप्लीट थी, दे डू नॉट गेन और लॉस और नॉट शेयर, सो देयर वैलेंसी इज 0। ना उन्होंने इलेक्ट्रॉन लिए, ना उन्होंने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए और ना ही शेयर किए, उन्होंने कुछ नहीं किया। Such a kind of element are known as noble gases or inert gases, or you can say unreactive gases. These have completely filled outermost shell, hence these are chemically unreactive. तो ये तो chemically unreactive हैं, बट जो पहले से जिनकी शेल फिल नहीं है वो रिएक्शन करते हैं,
क्यों करते हैं? फिल करने के लिए आउटर मोस्ट शेल। क्यों करनी है आउटर मोस्ट शेल फिल? जिससे कि स्टेबल हो सके। यहाँ मैंने दो फॉर्मूले आपके साथ लिए बनाए हैं। अगर आपको किसी मेटल की वैलेंसी पता करनी है, मेटल क्लियर है कौन है? जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेस देन 4 है। तो मेटल की वैलेंसी कितनी होती है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जितने आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन वही उसकी वैलेंसी। और नॉन मेटल के केस में 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, तो 8 में से 7 को माइनस करेंगे तो 1 आया, तो क्लोरीन की वैलेंसी कितनी हुई? 1। इस वीडियो को आप बार बार सुनिए। आपको अगर कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, आप फिर दोबारा सुनिए, और फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है, देन एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, यू कैन कॉल मी। बट the number of times you will listen it again and again and again, that much it will clear to you. I hope you understand my point. Have a nice day. Goodbye.